Hello everyone, I welcome you on this series of 100 terminologies of ethics. As such, we are going to discuss 100 definitions from the perspective of ethics definitions and their utility in UPSC civil services. UPSC has asked, UPSC ने पूछा हुआ है last जब से भी ethics का पेपर है since 2013, they have consistently asked the definition perspective, whether you know the definitions of basic words like honesty, integrity, ethics for that matter, और डिवोशन टू ड्यूटी, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं. टोटल ऑफ 100 टर्मिनोलॉजीज़ वी हैव आइडेंटिफाइड, और जो कि मैं पढ़ाता भी हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पे. यू विल फाइंड माय वीडियो लेक्चर्स ओवर देयर, सो दैट इज़ अनदर स्टोरी. दैट इज़ अ पेड कोर्स वेयर यू कैन join and get the services. But here in this playlist I am going to discuss those definitions as far as they are relevant from the perspective of जनरल स्टडीज़ का पेपर. तो एक बार आप जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपीएससी मेंस एथिक्स पेपर 4, ट्राई टू रिवाइज ऑल दीज डेफिनेशंस. आई विल ऑल्सो अटैच दीज हैंडआउट्स, दीज PPTs in the comment in the description of these videos, so that you can download and you can have a look at these before appearing in the examination. Let us have a look at this plan. I will discuss around 100 definitions. So we will attach these files where you can see how the course will go on. These 100 definitions we will cover. The plan is about this is the tentative list of the definitions. So we will start with this basic ethics definition, and then ethics versus law, values, ये सब मैं कवर करूँगा. तो ये एक बेसिक आउटले है. अगर आपको डाउनलोड करना है 100 definitions का, ये आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें आप यहाँ पर नंबर ऑफ रिविजन्स, ये सारी चीज़ें आप खुद से लिख सकते हैं. कोर्स कमेंसमेंट की डेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और यू कैन स्टार्ट योर कोर्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद एथिक्स. जो बेसिक आपका एथिक्स का डेफिनेशन है उससे हम स्टार्ट करेंगे. और यहाँ पे जब भी हम डिस्कस करते हैं इन डेफिनेशंस को, तो बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव को नहीं देखते हैं. हम यहाँ पे देखेंगे यूटिलिटी फॉर सिविल सर्विसेज. और यूपीएससी भी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछती है, तो डिवोशन टू ड्यूटी का पूछने का उनका ये मतलब है कि आर यू अवेयर ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी, द काइंड ऑफ डिवोशन विच इज़ रिक्वायर्ड from a bureaucrat who is there not for only 9 to 5 job, but they have a kind of responsibility. यूपीएससी ऐसे भी सवाल पूछ सकती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन mere accountability versus responsibility. So responsibility is something you feel from inside, something which is related to your core. Accountability is more technical. Accountability is like who is accountable. In parliament the ministers are accountable for something or not. As per law the district collector is accountable for something or not. वो हम देखेंगे. तो वो सारी technical details भी हम discuss करेंगे. So let us start with today's lecture. My name is Anurag Kashyap. I am a retired merchant navy officer, and I am the author of a handbook of ethics. And let us start with first definition, that is ethics and its utility in public services. So that was the course, and here you can see the ethics. Whenever हम जब भी किसी भी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे, तो स्टैंडर्ड सोर्सेज से अगर आपको वो डेफिनेशन मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. यहाँ पे मैंने सेकेंड ARC से डायरेक्टली जो एथिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको डिस्कस करने की कोशिश की है. अगर आप इसको डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं या फिर समझ करके भी रिमेंबर करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एथिक्स इज व्हाट इज एथिक्स. एथिक्स इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू गाइड द सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर. सो हियर you can see that I have underlined these set of principles. आपको एक तरह के principles या core values जो है आप कह सकते हैं, values हैं, principles हैं, which are going to act as values and principles that help in guiding the behavior, choice and action. अगर human beings हैं, they are confused whether I have to what is going to be the next step. If you see, let's say if you are going on a road and you see the people who are met with accident, also you are facing the urgency to join. Let's say एक यूपीएससी का केस स्टडी भी है कि अगर आप यूपीएससी के IAS के इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं और आपने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, तो आपकी वहाँ पे क्या कोर वैल्यूज है, यूपीएससी टेस्ट करना चाहती है. दिस काइंड ऑफ एथिकल डिलेमास दे विल गिव. सो these are the principles, these are the values जो हम यहाँ पे देखेंगे. जो 100 definitions है, वो सारी की सारी definition हमें ये बताएंगी कि किस तरह की values required हैं इस society में, और these values and principles how they help in guiding our behavior, our choices. अगर आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने की सोची है, तो आपकी लाइफ चॉइस भी क्या है. क्या आप पब्लिक को सर्व करना चाहते हैं, क्या आप
सक्सेस को पाना चाहते हैं, कि आप कंट्री में एक चेंज लाना चाहते हैं, करप्शन को फाइट करना चाहते हैं, देयर कैन बी वेरियस रीजंस। मे बी यू वांट टू बिकम एफ्लुएंट, विच इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। अगर आप एक स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं और नेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ देना चाहते हैं, करप्शन तो एक अलग चीज़ हो गई। वैलिड, ऑल द वैलिड मीन्स वाइट मनी, all the kind of fame, as you know, as you become powerful you get pride, and with the pride comes responsibility. तो आप एक बार, let's say you are placed as SSP or DIG in a particular state or district, तो वहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी आपको गाइड करती है। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कोर वैल्यूज। सेल्फ सेक्रीफाइस भी हो सकता है, महात्मा गांधी का सेल्फलेसनेस भी था, स्वामी विवेकानंद का था, टू मोटिवेट द यूथ इन नेशन बिल्डिंग। सो दीज आर द काइंड ऑफ वैल्यूज। सो एथिक्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वैल्यूज। एंड एथिक्स और मॉरल्स में भी अंतर होता है। हम देखेंगे कि मोरालिटी जो है वो थोड़ा सा पर्सनल होती है, और एथिक्स जो है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेट को ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं तो देयर कैन बी अ सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज, या फिर आप लेट्स से यू ज्वाइन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, दैट पुलिस डिपार्टमेंट रिक्वायर्स यू टू बी अपराइट, ऑनेस्ट एंड करेजियस। सो वहाँ की सेट ऑफ वैल्यूज जो होंगी वो वहाँ के पर्टिकुलर एथिक्स को, वर्क कल्चर को रिफ्लेक्ट करेंगी। सो एथिक्स इज मोर फॉर्मल, while morality is, maybe you will have religious morality, maybe you are atheist, maybe you are agnostic, maybe you are religious। तो वो जो moral values आएंगी वो आपके religion से भी derive हो सकती है, आपकी day to day life से भी derive हो सकती हैं। So this is the basic difference। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, आप बीच बीच में हम डिस्कस भी करेंगे। So what is the origin of this term ethics? Ethics has originated from Greek ethikos, which means rules or customs। सो कस्टम्स, रूल्स, नॉर्म्स जो हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। सो द नॉर्म्स विच आर गोइंग टू गाइड अस, इनके सेट ऑफ नॉर्म्स को हम एथिक्स कह सकते हैं थोड़ा फॉर्मल तरीके से। एंड विच ऑल्सो लाइक अगर रिपीटेडली उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो आपकी एक हैबिट एंड कैरेक्टर बनता है, डिस्पोजिशन, और वो सब हमारे सोसाइटी को और इंडिविजुअल्स को गाइड करता है। देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। कॉमन एक एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पे इन सारे प्लेलिस्ट के अंदर, जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे 100 लेक्चर्स, इसमें बिजनेसमैन कमिटेड टू प्रोवाइडिंग द क्वालिटी सर्विसेज। बिकॉज इफ लेट्स सी अ पर्सन हु इज डूइंग, अगर कोई ऐसे बिजनेस कोर प्रिंसिपल्स के बिना करता है वर्सेस एक बिजनेसमैन है जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को फोकस करते हैं, तो अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आप फोकस करेंगे तो लोग आपके पास बार बार आएंगे, रिकॉल वैल्यू आपकी बढ़ेगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एथिकल वैल्यू विच इज underlying in many of the successful businesses, and then they make the businesses different. All those core value businesses like Ratan Tata, Ajim Premji's Wipro is there, which is oriented in satisfying the demands of the customers. So quality services are ensured। और आपके यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिटीजन चार्टर के बारे में, जहां एज अ पब्लिक सर्वेंट आपको माना जाता है कि यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द स्टेट सर्विसेज टू द सिटीजन। तो वो भी हम देख लेंगे और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा ये एग्जांपल था, बिजनेसमैन कमिटेड टू द सर्विसेज, प्रोवाइडिंग द क्वालिटी सर्विसेज। सेकंड वन इज इफ अ फादर और गार्जियन और पेरेंट इज प्रोमोटिंग द वैल्यूज ऑफ जेंडर इक्वालिटी। इसको भी हम देख सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी अगर आप फैमिली में प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि यू आर डूइंग जस्टिस, यू आर डूइंग इक्वालिटी इन योर not only you are reading those things in constitution or law books, also you are a practicing person। तो यहाँ पे भी your values, your core values, ethical values of equality are going to be reflected। A techie, a person who is having technical knowledge, अगर वो इंजीनियर है, टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है, बहुत ज़्यादा एक ऐसे फॉर्म में काम कर रहे हैं where they have the chances, they can misplay with something, they can do hacking kind of activities, but they are avoiding those things because they have the core values। They are also afraid of if these things they are going to get caught, let's say they are not going to get caught and they can play with the codes and all, but still the core values are there because they respect the hard work, they respect their company's dedication, commitments and all, and they are not going to indulge in the activities like these, like hacking or these kind of data activities, right? So these are the general examples। Let us move on and have a look at the utility of ethics in the civil services। So relevance जो अगर आप देख रहे हैं, जैसे भी यूपीएससी आपसे पूछती है, मैंने आपको कहा सेकेंड ARC की आपने डेफिनेशन दी, दैट डेफिनेशन इज एथिक्स इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच इज गाइडिंग द सोसाइटी एंड द ह्यूमन बिहेवियर। सिमिलरली इफ यू कम अक्रॉस सम काइंड ऑफ कोड्स, बहुत आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो अगर जीएस पेपर 4 के लिए, तो एक सजेशन ये भी है कि नोलन कमेटी की रिपोर्ट को आप देखिए। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में जो भी
बातें दी हैं, जो भी रिकमेंडेशंस दी हुई थी, वो आज भी काफ़ी रिलेवेंट है। जैसे लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, ओपननेस होना चाहिए आपके कंडक्ट में, ये सारी चीज़ें आप बार बार उसको रिवाइज करते रहें। सेकंड ARC एक सोर्स है जिसको कि मैं रिकमेंड करूंगा, आप उसको क्विकली रीड करें, बीच बीच में रीड करें। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा याद करना है। बहुत सारे कमीशन के रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ने रिजेक्ट भी किया था और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सेलेक्ट भी किया है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि एक ओवरव्यू आप वहाँ पे देख लीजिए। सो एथिक्स हेल्प्स इन डिफाइनिंग द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि अगर जब भी आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं, आई हैव डिस्कस्ड देयर वन ऑफ द वैल्यूज टू बी एथिकल कैन बी गिवन एज अ कोर वैल्यू इन द कोड ऑफ एथिक्स। अदर थिंग्स विल बी लाइक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए। सेकेंड, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स हैज बीन रिकमेंडेड, एंड इफ यू आर एथिकल देन यू आर गोइंग टू स्क्रूटिनाइज एवरीथिंग, एंड पब्लिक का जो मनी है, क्या वो टैक्स पेयर का मनी सही तरीके से यूज हुआ है, वेदर इट हैज बीन यूटिलाइज इन एफिशिएंट मैनर और नॉट, ये सारी चीजें आपके पास कोर प्रिंसिपल्स होना चाहिए। सो एथिक्स इज गोइंग टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। thirdly, to avoid arbitrary and erratic actions, जब भी आप पब्लिक सर्विस में काइंड ऑफ मेच्योरिटी या काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, बिकॉज डिसीजंस आर गोइंग टू बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, दे आर नॉट गोइंग टू बी ब्लैक एंड व्हाइट कि आपको अच्छा डिसीजन लेना है या बुरा डिसीजन लेना है। वहाँ पे कहीं ऐसे भी इंस्टांसेस होंगे जहाँ पे आपको अवॉइड करना है कि फेवरेटिज्म ना हो जाए, जहाँ पे किसी का नेपोटिज्म जैसे बिहेवियर्स को अवॉइड करते हुए आपको आर्बिट्ररी और इरेटिक एक्शंस को अवॉइड करना है। अवॉइडिंग द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, हियर वी आर गोइंग टू सी वन ऑफ द वैल्यूज दैट इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड नॉन पार्टीजनशिप, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अशोक खेमका IAS ऑफिसर, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड समवेयर अराउंड, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता और ये चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं कि अगर उनको 60 टाइम्स ट्रांसफर किया गया है जस्ट इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ टेन्योर, सो यू कैन इमेजिन the kind of difficulty in actual serving to be an honest IAS officer in this system। तो उनको एक ये प्राइस पे करना पड़ा है, बट कोर वैल्यू उनकी वही है, इंटीग्रिटी है, करेज है, ऑनेस्टी है। तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं। मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड एब्सोल्यूट डिवोशन टू ड्यूटी, दैट इज अगेन इफ़ यू आर एथिकल, इफ़ यू आर मॉरल, देन डिवोशन टू ड्यूटी। 9 to 5 नहीं काम करना, आपको एक्स्ट्रा भी डेडिकेशन आपको दिखाना होता है इन सारी चीज़ों में, तो वो आप यहाँ से पा सकते हैं। And lastly, discharge the official duty with competence and accountability, because now that you are morally upright, now that you are correct in your actions, you can focus on the accountability। जब आपकी moral guide सही है, जब आप ethical values को लेकर के चल रहे हैं, then you can focus on accountability and fulfilling the official duty with full competence। Competence एक जगह है और morality एक जगह है। In fact, you may have come across this question in which they have asked, the UPSC has asked the quote by Warren Buffett, where he says he looks, जब भी वो रिक्रूट करते हैं, he is one of the richest person, कई बार वो नंबर 1 पे भी रहते हैं दुनिया में, वॉरेन बफेट। तो उन्होंने कहा है कि whenever he is looking for recruiting a person, he looks for 3 things: energy, intelligence and you can say integrity। and if integrity is missing, यानी कि अगर उनके अंदर ethical value नहीं है, उनकी core value integrity नहीं है, then energy and intelligence का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। तो competence आता है morality के बाद ही आता है। कितने भी आप टैलेंटेड हो, अगर आप मॉरल नहीं है, एथिकल नहीं है, तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। मे बी दैट थिंग्स कैन एंड अप इन अ डिजास्ट्रस मैनर्स। वी हैव सीन मैनी ऑफ द टैलेंटेड पीपल, मैनी ऑफ द पीपल हु हैव सो मच competencies, दे हैव रिजल्टेड इन डिजास्ट्रस आउटकम्स। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, और इस तरह से आप लिख सकते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड इट्स यूटिलिटी इन पब्लिक सर्विसेज इन जनरल इन द लाइफ एज वेल, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन। सो स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अगले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स वर्सेस लॉ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और डायरेक्टली यूपीएससी ने इसको पूछा हुआ है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, 90% ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज हैव बीन आस्क्ड एंड रिपीटेडली ये बहुत बार पूछा जा रहा है। तो हम जा करके देखेंगे बेसिकली एथिक्स और लॉ में क्या डिफरेंस होता है। स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।